Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. Hi everyone, this is Khushi and you're watching Pacific One News. Welcome to another episode of Public Show. So as you all know, elections are approaching. So right now we are at Janpat Market, New Delhi. So let's go directly to the public and ask them what are their views on the upcoming Lok Sabha elections 2024. So elections are soon approaching. So according to you, whom do you think will form government this year and why? It has to be Prime Minister Modi. I will cover two aspects of it. The first aspect is secularism. If you take it on secularism and you find the opposition mostly going against the current ruling party for being not a secular party, it's a very simple question that I put across to them that BJP government has been in power since two terms now. And of those two terms, is there anything that has happened against Muslims or any other minority specifically? That is my question. Second, I'll quickly take the CAA part. Everybody is against CAA in the opposition. Even the so-called minority is against CAA. Tell me one thing, that so-called minority, you understand what I'm talking about, is approximately 20 crores in population. What about the true minorities when it comes to the Sikhs or the Jains or the Buddhists? Do they not represent the minority of this country? If they do not have any problem against CAA, okay, now Punjab is not a BJP-dominated province, right? They have their own issues, right? But they have never come up against anything against CAA in particular. Then why a 20 crore population has an issue against CAA? Fine, so these two things. So that fake reason to build up a fear that this is not going to be good for the minorities is something which is not in favor, not going to be in favor of them, and somewhere people understand they're not fools anymore. All right, and today Congress has also released its manifesto. So what do you have to say about I it? really haven't gone across it. Give me the fine points. Are there any fine points in the manifesto? Like they have promised healthcare facilities and minority reservation and all that. Why reservation? I'm totally against reservation. It has to be reservation on the basis of your ability. सर बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की ही बनेगी। ऐसा क्या काम करा है मोदी गवर्नमेंट ने पिछले साल? विदेशों में भारत का नाम ऊंचा करा है और उसने लोगों को हेल्प करी है, सिलेंडर दिए हैं, अन्न दे दिया है गरीबों को, वो उसकी बनेगी सरकार। क्योंकि बाकी एक तो इनके सामने कोई टक्कर पे नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ ये 20-25 वो अलायंस बना है, अब कल को ये बन भी जाते हैं तो आपस में लड़ेंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बीजेपी का दावा है इस बार 400 पार, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और एक्चुअली क्या आई एम फ्रॉम पंजाब एंड पंजाब में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, वहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, वैसे वहाँ पे आपको पता होगा जो सीएम है मान साहब है, बट फिर भी ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी और क्यों? देखिए अभी तक जो माहौल लग रहा है तो बीजेपी का ही लग रहा है, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि सरकार किसी की बने लेकिन एक विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष खत्म हो जाएगा तो फिर सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, फिर वो मनमानी करते हैं। विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार पे भी दबाव रहेगा और जनता का भी भला होगा। बाकी रह गया आफ्टर ऑल तो भाजपा की ही सरकार बननी है क्योंकि लोगों में रुझान अभी उसी का है। भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन आपके मुताबिक किसकी बननी चाहिए? देखो सारे मुद्दे देखे जाएं तो आज की परिस्थिति के हिसाब से तो भाजपा ही ठीक है। सर मौजूदा सरकार से किस हद तक सहमत हैं आप और क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों? लगता तो यही है कि मोदी जी की ही बनेगी। सहमत है क्योंकि ठीक है, उन्होंने किया डेवलपमेंट, तो कोई ऐसी बात नहीं है। कई इलाकों में अच्छा किया, कुछ बातें हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बट ठीक है, मोर और लेस 80% ओके, सब वही है। लेकिन है कुछ बातें, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। सब हर कोई सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं, तो हैं बातें शायद खुले में बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, मुझे पता नहीं है। आप लोग मीडिया सब समझदार हो, ठीक है, फिर भी ही इज़ फाइन। इस 2024 के चुनाव में सरकार तो किसी भी नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी की ही बनेगी क्योंकि इससे कैसा है, काफ़ी मुद्दे हैं जिनके आधार पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 60-70 सालों में, 75 सालों में आज़ादी में जिनका कोई निर्णायक नहीं हुआ,
वो मुद्दे बीजेपी ने इससे उठाए और उन पे कामयाब रही है। सर 2024 में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए और क्यों? भाजपा की। क्या रीजन आपको लगता है कि भाजपा की सरकार बननी चाहिए? ऐसे क्या काम करे हैं भाजपा ने? नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बाहर जो कि फॉरेन कंट्री में भी उनका धंधा चलता है, नाम चल रहा है। अयोध्या मंदिर बनाया है, 370 हटाई है। इस विषय में लोग उनको वोट डालेंगे और खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर 400 पार होगा, उनका नारा 400 पार सच होगा। क्या लगता है सर आपको 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्या उसके पीछे वजह है? बनने में तो ये नहीं कह सकता, लेकिन बनेगी मोदी जी की, मतलब ऐसा ही बाजार में प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन आपके मुताबिक किसकी सरकार बननी चाहिए? और कोई मैम उस लायक है भी नहीं। मतलब हम भाजपा की सरकार नहीं कहते, मोदी जी को देखते ही लोग वोट करते हैं और मोदी जी की वजह से ही भाजपा की सरकार बनेगी। So that's all for now. We'll meet you soon. Till then, stay tuned with Pacific One News. Pacific One News, the news web leader. Your exposure to the world.